Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola, virtually. I belongs to the Department of Chemistry and myself, Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor. And we start with the Unit 5 of BSc first year, second sem, that is Physical Properties and Molecular Structures. This is the overall A part syllabus of Unit 5 and this is the B part of Unit 5. So let's start with the lecture number 3 of Unit 5, that is Physical Properties and Molecular Structure. So first point is that the Clausius-Mosotty equation. The molar polarization or molar polarizability, that is PM, of molecule is given by this equation, which is known as the Clausius-Mosotty equation. ये जो नीचे दिया हुआ इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इसे बोलते हैं क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन. उससे हम मोलर पोलराइजेशन या फिर मोलर पोलराइजेबिलिटी निकाल सकते हैं. सो इक्वेशन में क्या दिया है देखते हैं. Pm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 इंटू mm अपॉन रो, where epsilon it is nothing but a dielectric constant or relative permittivity. अब ये dielectric constant क्या होता है? दो आयंस को सेपरेट करने की पावर इज नथिंग बट अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, हमने NaCl वाटर में डिजोल्व किया. वी नो दैट NaCl अ कॉमन साल्ट. अब आपने जब NaCl वाटर में ऐड किया, डिजोल्व किया, तो दैट हैज़ बीन सेपरेट आउट एज अ Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव. Na पॉजिटिव सेपरेट आउट हो जाएगा और Cl निगेटिव सेपरेट आउट हो जाएगा और उसके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कैपेसिटी है, पावर है टू सेपरेट द Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, दैट कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जितनी ज़्यादा पावर रहेगी उतना ज़्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स व्हाट? द आयंस या फिर पोल्स, यहाँ पे पोल्स बोलेंगे, दो चार्जेस, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स या फिर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को सेपरेट करने की कैपेसिटी, इट इज़ नथिंग बट अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी. The next point is mm. What is mm? mm is nothing but a molar mass of that molecule, जिसका हमें मोलर पोलराइजेशन या फिर मोलर पोलराइजेबिलिटी निकालनी है. And at the last, that is rho. Rho is nothing but a density. Density it is also mathematically defined as mass upon volume. Density मतलब thickness, वो कितना dense है. For example, milk and honey. As compared to milk, honey is quite dense. उसकी density ज़्यादा रहेगी, वो easily flow नहीं होगा. बट अगर आप मिल्क के बारे में सोचते हो तो दैट हैज़ बिन फ्लो ईजीली, बिकॉज वो उतना गाढ़ा नहीं होता है, उतना थिक नहीं होता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है. सो दीज आर द टर्म्स विच हैज़ बीन यूज्ड इन द इक्वेशन ऑफ क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन. इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोज नंबर. सो इक्वेशन हो जाएगा 4/3 पाई Na अल्फा d प्लस 4/3 pi Na mu square upon 3 kT, where Na is nothing but a Avogadro's number, pi is constant, alpha d it is nothing but the distortion polarizability, mu is a permanent dipole moment, small k it is a Boltzmann constant, and capital T is a absolute temperature in a Kelvin. So this is nothing but a Clausius-Mosotty equation.
You must remember this Clausius-Mosset equation. Clausius-Mosset equation, it is only for a qualitative purpose here. Now next point, that is the measurement of dipole moment. There are several methods, बहुत सारे methods हैं जिससे हम dipole moment measure कर सकते हैं, but यहाँ पे हम सिर्फ दो ही method use करेंगे. We are just discussing only two methods here. First one is the vapor temperature method and another is the refraction method. First one is the vapor temperature method and second one is the refraction method. So let's start with the first method, that is the vapor temperature method. In vapor temperature method, in this method, the dipole moment, that is mu, is measured by using a Debye equation. And the Debye equation is given as the Pm is equal to epsilon r minus 1 upon epsilon r plus 2 mm upon rho. It is equal to 4 by 3 pi Na alpha d plus 4 by 3 pi Na mu square 3 kt. Or it can be identified as this whole term is considered as a, this whole term is considered as a, and this whole term except temperature is considered as a b. Suppose इसे simplify करने के लिए focus on this equation. Pm is equal to 4 by 3 pi Na alpha d plus 4 by 3 pi Na mu square upon 3 kt. ये इक्वेशन पे फोकस करिए. अब इसमें के ये जो है, ये सिंपल रखने के लिए या फिर हमें लिखने के लिए इजी हो जाए एंड कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए, वी हैव जस्ट मॉडिफाइड दैट इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ न्यू कांस्टेंट, दैट इज ए एंड बी. अब ये जो है दैट इज 4 by 3 pi Na अल्फा डी, ये हम सिंपली कैपिटल ए लिख लेंगे. सो द इक्वेशन बिकम Pm इज इक्वल टू ए, ये पूरा ए हो गया, प्लस 4 by 3 pi Na mu square upon 3k is counted as a b. सपोज हमने ये टर्म को a कह दिया और ये जो पूरा टर्म है एक्सेप्ट टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज अ b. सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन बिकम Pm is equal to a, where a is 4 by 3 pi Na alpha d. A is this term, plus b, that is 4 by 3 pi Na mu square 3k upon t, that is Pm is equal to a plus b upon t. So ये इक्वेशन थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया. Now in this case we get a new modified equation where the a is this term, that is 4 by 3 pi Na alpha d, and b is this term, that is 4 by 3 pi Na mu square upon 3k. सिर्फ टेम्परेचर को छोड़ दिया, टेम्परेचर हमने लिया है बिकॉज वी वांट अ ग्राफ बिटवीन द Pm एंड टेम्परेचर. अब हमने एक ग्राफ निकाला. फ्रॉम दिस अबो इक्वेशन द ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड बिटवीन द टोटल मोलर पोलराइजेशन, दैट इज Pm. Pm रखा हमने ऑन y एक्सिस. ग्राफ किसके अगेंस्ट है? Pm अगेंस्ट टेम्परेचर 1 by T. ये है Pm अगेंस्ट 1 by T. वी नो दैट. व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज y एक्सिस, दिस इज द Pm वैल्यू. ऑन y एक्सिस Pm वैल्यू, y इज इक्वल टू mx प्लस c. mx, x क्या लिया हमने? 1 by t. 1 by t. y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये जो है वो ये हो जाएगा, दैट इज इंटरसेप्ट. सो इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम दैट ऑफ द जीरो, ऑलवेज रिमेंबर. सो इन दिस केस द p वर्सेस 1 अपॉन t हमने ग्राफ पुट किया. तो ग्राफ जो है वो दो लाइंस शो करेगा. एक जो स्ट्रेट लाइन विद दिस स्लोप और एक स्ट्रेट लाइन देगा जो डायरेक्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा. सो इन दिस केस फ्रॉम दिस इक्वेशन by plotting the graph Pm against 1 upon t we get a two straight lines.
वन इज विद दिस स्लोप, ये ऐसे जाएगा, और एक लाइन आएगी जो यहाँ पे नहीं लिखा दी है, बट एक लाइन आएगी जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा, एंड जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा विच इंडिकेट दैट विच गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। मीन्स जब आप हमने 1/t पुट किया एक्स एक्सिस पे, अगर वो यहाँ पे पैरेलल लाइन आता है तो इट मीन्स दैट देर इज अ, ये तो स्लोप हो गया। देन व्हाट अबाउट बी वैल्यू? बी वैल्यू, ये अगर स्ट्रेट लाइन आता है यहाँ पे पैरेलल लाइन, देन इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट इन पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के रहेंगे, इन पोलर मॉलिक्यूल द स्लोप ऑफ लाइन, दो टाइप के, either polar or non-polar, on the basis of which the mu value can be identified. In polar molecules, the slope of line will be a value of constant b, which consequently determined by the dipole moment. अब ये जो इक्वेशन है, in this case if the graph is plotted between total molar polarization and 1/t, a straight line has been obtained. This is the diagram. सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो स्लोप ऑफ लाइन विल गिव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी, विच कॉन्सिक्वेंटली डिटरमाइंड बाय द म्यू वैल्यू। अब ये ग्राफ निकल गया, ग्राफ की वजह से हमें कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगे। मतलब ये देखिए, एक इस पे उतना, इस पे इतना, सो ऑन द बिहाफ ऑफ विच वी गेट द वैल्यू ऑफ बी, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें b की वैल्यू मिलती है तो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे अगर b की वैल्यू मिल जाती है, अगर b की वैल्यू मिल गई इन दिस इक्वेशन, 4/3 पता है, पाई का भी वैल्यू पता है, एवोगैड्रोस नंबर पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी, वो भी कांस्टेंट है तो उसकी भी वैल्यू पता होती है, तो हमें ग्राफ पर से क्या मिला? दैट इज b। और b की वैल्यूज़ मिलने के बाद में बाय पुटिंग ऑल दिस टर्म पाई, Na और k की वैल्यू पुट करने के बाद में क्या बचता है? तो दैट इज़ अ डायपोल मोमेंट। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। सो वेपर का टेम्परेचर पता होने के बाद में वी कैन आई पुट द ग्राफ, मीन्स इन अ सिंपल वर्ड, व्हाट इज़ द वेपर टेम्परेचर मेथड? हमने जो इक्वेशन लिया वो इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया ए एंड बी के टर्म में। अभी जो पीएम की वैल्यूज़ है वो रखी हमने वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रखा हमने 1/t। अब बिकॉज ऑफ दिस जो लाइन आएगा, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, जो ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ पर से हमें b की वैल्यू मिलेगी, बिकॉज b इज़ अ स्लोप, वी नो दैट y is equal to mx plus c and m is nothing but a slope. Y that is pm, m that is b, x that is 1/t जो हमने x एक्सिस पे रखा, और c मीन्स वो कचरा है, कुछ काम का नहीं है, that is a। सो इसका जो स्लोप है वो मतलब जो भी स्लोप रहेगा वो b की वैल्यूज रहेगी। सो ग्राफ पर से आप स्लोप निकाल पाओगे। अब ग्राफ पर से स्लोप मतलब b की वैल्यू निकल गई तो इसकी वैल्यू निकल गई, दिस इज इक्वल टू द b वैल्यू। अब 4/3 पाई Na एंड 3k उसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं क्योंकि वो उनकी वैल्यू पता है। सो बचा क्या? तो दैट इज ओनली द डायपोल मोमेंट। सो द डायपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ जो हमने pm वर्सेस 1/t पुट किया है, एंड दिस मेथड इट इज़ नथिंग बट अ वेपर टेम्परेचर मेथड। सो फॉर in a polar molecule, by knowing the slope of that line, that is the value of b, on the behalf of which the mu values can be calculated. So mu is nothing but a mu is equal to under root of 9kb upon 4 pi Na. So on the basis of this we can calculate the mu value. अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो ये लागू होता है, बट अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो इन दैट केस
ये जो लाइन है वो ऐसी नहीं आएगी, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगी। मीन्स उसकी म्यू की वैल्यू रहेगी 0, बिकॉज बी मतलब स्लोप, उसे स्लोप नहीं है, स्लोप की वैल्यू क्या है 0। स्लोप मीन्स इसे देखो, इसे इसमें स्लोप है, चढ़ाव है, बट अगर स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक निकालूँ तो इट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट डज नॉट हैविंग अ स्लोप। मीन्स बी की वैल्यू नहीं रहेगी, 0 रहेगी। अगर 0 है तो द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ म्यू इज इक्वल टू 0। अगर बी 0 हो जाता है तो म्यू इज ऑल्सो 0 एंड इट इंडिकेट दैट द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। मतलब अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसकी म्यू वैल्यू 0 निकलेगी, या फिर उसकी वैल्यू अगर म्यू इज इक्वल टू 0 दी है, द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड एज द नॉन पोलर। और उसका जो ग्राफ रहेगा Pm वर्सेस 1/T, इट इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसका स्लोप नहीं रहेगा, 0 रहेगा। So this is the first method, that is the vapor temperature method. Now let's check out the next method, that is the refraction method. In refraction method, the equation given as, in this method the dipole moment, that is mu, जो dipole moment है वो measured किया जाता है by measuring the dielectric constant of the vapor in terms of refractive index. It is only at one temperature. पहली जो मेथड्स देखी थी हमने, देर इज़ अ वेरिएशन इन टेम्परेचर, आप अलग अलग टेम्परेचर पे पीएम मेजर कर पाते हो, वेरिएशन टेम्परेचर का है। बट इन अ रिफ्रैक्शन मेथड यू आर नॉट अवेलेबल, देर इज ओनली वन टेम्परेचर इज अवेलेबल हियर, टेम्परेचर की वैल्यू वेरिएशन नहीं हो पाएगी यहाँ पे। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड ऑल्सो। सो what is the equation given? Equation is given as P is equal to Pi plus 4 by 3 pi Na mu square upon 3 kT, where or in this equation the mu is there. अब ये mu जो वैल्यू है उसे निकालना है तो all the term should be taken to the one side और mu को एक जगह पे रख लो। तो म्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और बाकियों को अगर दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में भेजा तो वी गेट इक्वेशन दैट इज 9k अपॉन 4 पाई Na इंटू अंडर रूट ऑफ P माइनस Pi अपॉन T। सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में से हम म्यू की वैल्यू पता करेंगे। बिफोर दैट, टू सिंप्लीफाई दिस, हमें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, पाई की वैल्यू पता है, Na की वैल्यू पता है। So put the value and we get a final multiplication and final जो इसकी वैल्यू आएगी वो आती है 0.0128। अब फाइनल इक्वेशन क्या हो गया? द सिंप्लीफाइड इक्वेशन दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.0128 अंडर रूट ऑफ P माइनस Pi इंटू T। नाउ P और Pi क्या है? P is a induced polarization and capital P is nothing but a total polarization. So by knowing the induced polarization and total polarization, we can easily detect the value of mu. Thus, by knowing the value of molar total molar polarization and induced molar polarization, the dipole moment can be easily calculated. And one more time this equation, that is Pm is equal to epsilon r minus 1 upon epsilon r plus 2 into mm upon rho. That is, this equation gives that यहाँ पे हमें epsilon refractive index identify करना है in the sense of dielectric constant. So this is the equation where the dielectric constant has been mentioned. तो अभी इसमें से but it has been given that the Maxwell ने लिखा था कि the refractive index, that is eta, is related to the dielectric constant, that is the dielectric constant, it is nothing but a n square, that is the square of refractive index. So refractive index and डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन है। तो अगर हमें
एप्सिलॉन पता चला तो वी कैन आइडेंटिफाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता चला तो वी कैन ईजीली कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल P जो है वो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन की वैल्यूज पुट करी. सो वी गेट PM इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, इट इज नथिंग बट n स्क्वायर, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 mm अपॉन रो. नाउ यहाँ पे बाय नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मशीन से निकाल सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं. तो बाय नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू पता होगी, मोलर मास पता है, डेंसिटी पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ विच द टोटल पोलराइजेशन निकाल सकते हैं. अगर टोटल पोलराइजेशन निकाल सकते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ PM और P. सो इस इक्वेशन से हमें टोटल पोलराइजेशन पता चल गया. एंड फाइनली वी गेट अ induced polarization can be calculated, and on the basis of this the total dipole moment can be calculated. So this is the second method, that is by using a refractive index we can calculate, by using a refractive index n, that is the total polarization, that is PM, can be calculated on the basis of which the dipole moment can be calculated. So this is the another method, that is second method, that is refractive method. Now next point is that the dipole moment and the structure of molecule, or simply the applications of dipole moments. अगर हमें dipole moments किसी chemicals के या compounds के पता है तो वो molecule का structure क्या होगा वो predict कर सकते हैं. So it can be considered as the dipole moment and its structure of molecule. So पहला application है, that is the identification of structure. Okay, let's start with this. The dipole moment जो है molecule का जो dipole moment है, that is mu, वो कौन सी information structure के बारे में देता है. तो पहला है, that is it gives a extent of the polar character of its bond. We know that there are basic three types of bonds: ionic, covalent and coordinate. हम सिर्फ ionic and covalent consider करते हैं. Ionic means what? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस होगा वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा. एंड कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट? जहाँ पे शेयरिंग होती है, दैट इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड. और कौन सा बॉन्ड कितना आयोनिक है, दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाय कंसिडरिंग द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. सो जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट से हम एक्सटेंट ऑफ पोलर कैरेक्टर, मतलब वो पॉजिटिव निगेटिव आयनिक कैरेक्टर में जा रहा है या कोवैलेंट कैरेक्टर में जा रहा है, वो हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग अ म्यू वैल्यू. अगर म्यू वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज हाई. अगर पोलर कैरेक्टर म्यू वैल्यू थोड़ी कम है, बहुत कम है, तो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द मॉलिक्यूल हैविंग अ लेस पोलर कैरेक्टर, या फिर उसका आयोनिक परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम है. सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी. एंड सेकेंड वन है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप्स पता चलती है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिकल शेप पता चलती है. सो दिस आर द बेसिक टू एप्लीकेशंस about the information of the structure of molecule. So let's start with the first example, that is for a inorganic compounds. Inorganic compounds, basically organic compounds means what? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे as a backbone, और inorganic means उस जो कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन एज अ बेसिक या बैकबोन नहीं होंगे, that is compound. For example, HCl, HCl, HBr, HF, etc. and etc. So these are the inorganic compounds.
नाउ इन दिस केस द स्टडी ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. नाउ अब 4 केमिकल्स लिए हैं, HCl लिया है, HBr लिया है, HI लिया है और HF लिया है. ऑल आर द हाइड्रोजन हैलोजन एसिड्स. अब ये जो है हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सो ऑन, इसमें म्यू की वैल्यू दी है. वी नो दैट हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू द हैलोजन. फ्लोरीन जो है एज कंपेयर टू, ये हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. And we know that the fluorine is the highest electronegative as compared to the chlorine, as compared to the bromine and iodine. मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में Br, उसके बाद में आयोडीन. अब म्यू की वैल्यू दी है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी है. द डायपोल मोमेंट ऑफ HF इज अ 1.91. HCl के लिए 1.03, HBr के लिए 0.78 एंड द HI के लिए 0.38. अब कंपैरेटिवली अगर सोचा जाए तो म्यू वैल्यू फॉर अ HF इज द वेरी हाई एज कंपेयर टू ऑल दिस 3. मीन्स इससे क्लियरली डिक्लेयर्ड हो जाता है द आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF इज वेरी हाई एज कंपेयर टू HCl. means HF is a pure ionic compound. HCl भी ionic compound है, but as compared to HF वो थोड़ा कम ionic है, उसका percentage of ionic character थोड़ा कम है. And similarly the HBr having the less ionic character and HI जो है वो थोड़ा सा और थोड़ा कम ionic compound है. So this show that the polar character of HX bond decreases progressively from HF to HI. Means यहाँ पे polarity decrease हो रही है. Percentage of polar character has been decreases here. So by considering the mu value, mu की value पता होने से हम percentage of ionic character पता कर सकते हैं. Now next point is that the shape of molecule. Now for example CO2, एक example लिया CO2 and I am telling you that the CO2 having a mu value is equal to 0. But if I am saying that mu is not equal to 0 or non-zero, on the behalf of this CO2 polar या non-polar ये declared होता है. अब CO2 का जो CO2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर दिखाता है. एक है लीनियर, जहाँ पे ऑक्सीजन C एंड ऑक्सीजन ऐसे एक लाइन में लीनियर खड़े हैं. इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव, दिस ऑल्सो इज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव. तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा और उसी पावर से ये ऑक्सीजन भी ये पाई इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा. देयरफॉर एग्जैक्टली सेम फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन की होने के वजह से दैट हैज़ बीन गेट कैंसल और टोटल डायपोल मोमेंट दैट इज म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0. मीन्स फॉर अ लीनियर CO2 द डायपोल मोमेंट इज 0. सो इससे क्लियर हो जाता है कि CO2 लीनियर स्ट्रक्चर है. सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई बाय यूजिंग अ म्यू वैल्यू. बट और एक ट्विस्ट है, CO2 हैविंग अ बेंड स्ट्रक्चर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेंड स्ट्रक्चर ऑफ CO2. यहाँ पे CO2 का बेंड स्ट्रक्चर है. ये ऑक्सीजन खुद के तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस बॉन्ड और ये ऑक्सीजन खुद के तरफ खींच रहा है बिकॉज इट इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन. बट यहाँ पे ये ऑक्सीजन खींच रहा है, उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचने वाला कोई नहीं है. सो ये ऑक्सीजन कार्बन की तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ इजीली खींच पाएगा.
अगर ये खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के तरफ तो ऑक्सीजन बिकम अ पार्शली निगेटिव हियर और कार्बन पे पॉजिटिविटी डेवलप होगी, और ये दूसरा ऑक्सीजन भी वही पावर से इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचेगा, तो इट इज़ बिकम पार्शली निगेटिव एंड कार्बन पे और पॉजिटिविटी डेवलप होगी। मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोल्स, वहाँ पे पॉजिटिविटी निगेटिविटी डेवलप हो रही है। एंड इफ इट इज देन वहाँ पे अगर पॉजिटिविटी निगेटिविटी मीन्स पोल्स अगर जनरेट हो रहे हैं, देन इट मस्ट हैविंग अ म्यू वैल्यू, उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगा। मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस CO2 के दो स्ट्रक्चर है, एक लीनियर मीन्स ऐसे और एक बेंड स्ट्रक्चर। अगर मैंने बोला कि CO2 हैविंग म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स आप बोल सकते हो कि CO2 लीनियर स्ट्रक्चर में है। बट अगर मैंने बोला कि म्यू फॉर अ CO2 इज नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि CO2 इज इन अ बेंड स्ट्रक्चर। सो this is the very good example of how to identify a shape of molecule by considering the mu value. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, that is water molecules. This is a water molecule. It is a bent structure. देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव, देयरफॉर ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खुद की तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड के भी खुद के तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह जा रही है तो दैट स्पीसीज बिकम पार्शली निगेटिव एंड द हाइड्रोजन बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, निगेटिविटी दूर जा रही है, तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी, मतलब उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू रहेगा। एंड इट हैज़ बीन प्रूव दैट म्यू वैल्यू for H2O is a 1.85 D. So this has been shown that the water molecule cannot be linear. हम लिखते वक्त HOH लिख लेते हैं, H2O लिख लेते हैं like a CO2, बट CO2 लीनियर है तब उसकी वैल्यू म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो रहती है, बट वाटर की म्यू इज नॉन ज़ीरो मतलब 1.85 D है। मतलब इससे डिक्लेयर्ड होता है कि जो बॉन्ड है वो लीनियर नहीं है, वो बेंड स्ट्रक्चर है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल टू शो दैट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी easily आइडेंटिफाइड बाय नोइंग द म्यू वैल्यू। डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उससे मॉलिक्यूल का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दो एग्जाम्पल्स है, एक है SO2। SO2 भी CO2 जैसे ही दिखता है बट उसकी वैल्यू 1.60 है, मतलब इट डज नॉट हैविंग अ सिमेट्रिकल, या फिर उसका म्यू वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब उसका डायपोल मोमेंट है, मतलब उसका शेप लीनियर नहीं है। वन मोर NH3 अमोनिया, उसकी भी वैल्यू 1.46 है। सो आप NH3 को ऐसे नहीं लिख पाओगे, दैट इज़ N यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज़ नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। अगर ऐसा है तब भी द म्यू वैल्यू इज नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे म्यू वैल्यू इज 1.46, देयरफॉर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट SO2 and NH3 are a non-linear molecules. So these are the two more examples which clarify that म्यू की वैल्यू अगर पता है तो हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिक्लेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अब तक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में दो पॉइंट्स हैं। एक है उसका ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब व्हाट, ऑर्थो, मेटा, पैरा, वो स्पेस में कैसे है, 3D में कैसे एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द ओरिएंटेशन। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ टू एग्जाम्पल, एक है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव,
क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू द बेंजीन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खुद की तरफ खींचेगा। अब ये क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ, और सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन का भी क्लोरीन खींचेगा। देयरफॉर दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने में लगे हैं, देयरफॉर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि फ्रॉम बोथ द साइड द सेम पावर एलिमेंट दैट इज क्लोरीन, जिसकी पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, एग्जैक्ट है, और वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए फॉर अ पैराक्लोरोबेंजीन द म्यू वैल्यू इज 0, मीन्स ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसमें पॉजिटिविटी निगेटिविटी डेवलप नहीं हो पाती, पोल्स डेवलप नहीं होते। एंड सेकेंड वन इज दैट द ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मतलब पहला एंड सेकेंड पोजीशन पे, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन है वहाँ से नंबरिंग देना शुरू करते हैं हम। सो दिस इज 1 and this is 2, 1 2 position is nothing but a ortho position. So यहाँ पे ये क्लोरीन बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के तरफ खींच रहा है, उसे अपोज करने वाला यहाँ पे क्लोरीन अब्सेंट है, और दूसरी जगह ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पे अपोज करने वाला क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, देयरफॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा और बेंजीन पे पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी। मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी और देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, एंड हेंस उसकी म्यू वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगी, उसकी म्यू वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगी, और उसकी म्यू वैल्यू दी है दैट इज़ 2.54। सो अगर आपको अब उल्टा सोचते हैं, अगर आपको म्यू वैल्यू इज इक्वल टू 0 दी है, तो यू कैन डिक्लेयर इट एज अ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, या फिर वो पैरा सब्सटीट्यूटेड होगा। अगर वो ऑर्थो या मेटा सब्सटीट्यूटेड है तो उसकी म्यू वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगी, उसकी म्यू वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगी, नॉन ज़ीरो रहेगी। सो उस मीन्स बाय नोविंग द म्यू वैल्यू you can identify the orientation in a di-substituted benzene. So this is the first application in a organic compound. So it has been shown that in para-dichlorobenzene the CCl bond are exactly opposite to each other, so that the vector sum is considered as a 0. ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, सो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट जो इलेक्ट्रॉन का है वो 0 रहेगा। बट इन दिस केस देर इज अ 60 डिग्री एंगल इज देयर, और कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट रहेगा, और उसका डायपोल मोमेंट रहेगा 2.54 d. So on the behalf of this we can identify the orientation in di-substituted benzene. And the last point is that to predict the cis and trans configuration. Now cis means what? डबल बॉन्ड के एक डायरेक्शन में, डबल बॉन्ड के एक, अगर ये डबल बॉन्ड को ऐसे कट करे तो एक डायरेक्शन एक प्लेन में अगर सेम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए अगर इसे ऐसे कट किया तो यहाँ पे ClCl है, यहाँ पे HH है, सो दिस इज नोन एज द सिस, एंड दिस इज नथिंग बट अ सिस 1,2-डाइक्लोरोइथीन। अब ये मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के सेंस में देखते हैं, तो यहाँ पे ये निगेटिव स्पीसीज निगेटिव स्पीसीज, पॉजिटिव स्पीसीज पॉजिटिव स्पीसीज। अब ये जो है ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पे अपोज करने वाला क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के तरफ खींच रहा है। हेंस इन अ सिस द मॉलिक्यूल मस्ट हैव म्यू वैल्यू नॉन ज़ीरो, वो नॉन ज़ीरो रहेगी, ज़ीरो नहीं रहेगी, दैट इज इक्वल टू 1.56। अगर आप 1,2-डाइक्लोरो, ये भी 1,2-डाइक्लोरोइथीन है, ये भी 1,2-डाइक्लोरोइथीन है, बट ये सिस है और ये ट्रांस है। ट्रांस मतलब डबल बॉन्ड के एक प्लेन में एक एलिमेंट, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट में सेम एलिमेंट चाहिए। देखिए Cl एंड Cl, यहाँ पे H एंड H, या फिर हाइयर मॉलिकुलर वेट लोअर मॉलिकुलर वेट, वो भी कंसिडर होता है। बट फॉर दिस टेक दिस एग्जाम्पल फॉर अ ग्रांट। So in this case for a trans 1,2-डाइक्लोरोइथेन क्लोरीन खींचेगा, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन खींचेगा, सो टोटल खींचा खाची जो है इलेक्ट्रॉन की वो 0 हो जाएगी,
एंड हेंस वहाँ पे पोल्स तैयार नहीं होंगे, डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा, हेंस उसकी जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है वो 0 रहेगी. सो सिस की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, ट्रांस की वैल्यू 0 रहेगी अगर सिमेट्रिकल है तो, अगर सेम मॉलिक्यूल है तो. सो इन दिस केस सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नोइंग द म्यू वैल्यू इजीली. सो सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल्स को भी हम पता कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस lecture. In next lecture we will start with the magnetic properties. So up till then, study hard, take care, be safe. Thank you very much.